اب جو 3 اطراف سے ان پر حملہ شروع ہو گیا، تب بڑی تیز رفتاری سے ان کا قتل عام شروع ہو گیا اور ان کے اندر دکھ کے خیابان اور یاسیت کی گہرائیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ سنسار سنگھ کے وہ لشکری زیادہ دیر تک عادل خان کے حملہ آور لشکریوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، چند ایک نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور انہیں عادل خان نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس موقع پر جبکہ عادل خان نے جنگ جیت لی تھی اور سنسار سنگھ کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا تھا، کملا دیوی اور رتن کماری کے چہروں پر بے پایاں خوشی اور سکون تھا۔ دونوں نے آپس میں کھسر پھسر کرتے ہوئے کوئی مشورہ کیا، پھر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتی ہوئی اس جگہ آئیں جہاں سامل داس اور اس کا بیٹا چندر سین دونوں جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر رتن کماری نے سامل داس کو مخاطب کیا، ماموں، میں اور کملا دونوں جو اس قدر بے تکلف ہو کر عادل خان سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ اس کا برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ وہ ہم دونوں کے بچپن کا ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ رتن کماری مزید کہنا چاہتی تھی، انکشاف کرنا چاہتی تھی کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر سامل داس بول اٹھا، میری بیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم دونوں کا بچپن عادل خان کے ساتھ گزرا ہے۔ قسم بھگوان کی، جب تم اس سے بے تکلف ہو کر گفتگو کرتی ہو تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں، برا نہیں مانتا۔ میں جانتا ہوں عادل خان ایک بے مثال نوجوان ہے، تم تینوں کا بچپن اکٹھے گزرا ہے۔ بہرحال میں تم پر واضح کر دوں کہ تم تینوں کا آپس میں بے تکلف ہونا میرے لیے تکلیف نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہے۔ تم دونوں مطمئن رہو۔ جس وقت سامل داس یہ گفتگو کر رہا تھا اس وقت اس کا بیٹا چندر سین بھی مسکرا رہا تھا۔ سامل داس کی اس گفتگو سے کملا دیوی اور رتن کماری دونوں ہی خوش ہو گئی تھیں۔ پھر رتن کماری سامل داس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماموں، جنگ کا تو خاتمہ ہو گیا ہے، اب ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے پیچھے عادل خان کے بار برداری کے جانور ہیں، ان پر رسد اور ضروریات کا سامان لدا ہوا ہے، وہ خود بخود آگے بڑھائیں گے۔ سامل داس اور چندر سین نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر چاروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، انہیں بھگاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں اس وقت عادل خان کھڑا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اتر چکا تھا اور زخمیوں کی دیکھ بھال کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس موقع پر کملا دیوی اور رتن کماری دونوں اس کے قریب گئیں۔ سامل داس اور چندر سین بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ پھر گفتگو کا آغاز کملا دیوی نے کیا، عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ٹکراؤ کے شروع ہونے سے پہلے میں نے کچھ اندیشوں کا اظہار کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ نے میری تنبیہ پر عمل نہیں کیا۔ بہرحال میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ اور ساتھ ہی کملا دیوی کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ گہری مسکراہٹ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے رتن کماری بول پڑی، ساتھ ہی میں اور کملا دیوی آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ جہاں آپ جیسے تیغزن، آپ جیسے محافظ ہوں، وہاں لوگوں کے تحفظ اور ان کی شانتی گہری اور امر ہو جاتی ہے۔ رتن کماری جب خاموش ہوئی تب سامل داس اور چندر سین نے بھی اس کامیابی پر عادل خان کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر عادل خان نے ایک گہری نگاہ کملا دیوی اور رتن کماری پر ڈالی، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تو تم دونوں کو یقین ہو گیا کہ میں نے تمہاری حفاظت کا خوب اہتمام کیا تھا۔ اب تم دونوں کے ذمے میں ایک کام لگاتا ہوں، یہ جو مرنے والوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، ان کے اندر گھوم پھر کر جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے راج منتری کے وہ بیٹے جو تم دونوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس جنگ میں کام آ گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ لیکن دیکھو، پہلے ان لشکریوں کا جائزہ لو جو زندہ گرفتار ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دونوں ان میں ہوں۔ عادل خان کے ان الفاظ پر کملا دیوی اور رتن کماری کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پہلے دونوں تقریباً بھاگتی ہوئی اس سمت گئیں جہاں گرفتار ہونے والوں کو کھڑا کیا گیا تھا، ان کا جائزہ لیا، دوبارہ عادل خان کے پاس آئیں۔ پھر کملا دیوی چہکنے کے انداز میں کہنے لگی، یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں راج منتری کے بیٹے نہیں ہیں۔ میں اور رتن کماری اب ان لاشوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کملا دیوی اور رتن کماری لاشوں کے اندر گھومنے پھرنے لگی تھی۔ جلد ہی وہ دونوں تقریباً بھاگتی ہوئی دوبارہ عادل خان کے پاس آئیں اور بے پناہ خوشی اور طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے اس بار رتن کماری بول پڑی، عادل خان، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، راج منتری کے دونوں بیٹے اس ٹکراؤ میں کام آ گئے ہیں۔ وہ دائیں جانب ذرا فاصلے پر ان دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میں اور کملا دیوی انہیں پہچان چکی ہیں۔ اگر تمہارے راج منتری کے دونوں بیٹے جو تم دونوں کے طلبگار تھے اس ٹکراؤ میں کام آ گئے ہیں تو پھر میرے خیال میں تمہیں کسی اور سے پریشان ہونے اور خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی طرفداری کرنے والا سنسار سنگھ تھا، وہ پہلے ہی عدم کو سدھار چکا ہے۔ اب تم دونوں رکو، میں ذرا گرفتار ہونے والوں سے بات کرتا ہوں۔ عادل خان کے کہنے پر رتن کماری اور کملا دیوی دونوں سامل داس اور چندر سین کے پاس کھڑی ہو گئیں، جبکہ عادل خان جنگ کے بعد ہتھیار ڈالنے اور گرفتار ہونے والوں کے پاس گیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، جس وقت سنسار سنگھ تمہیں ان علاقوں کی طرف لے کر آ رہا تھا
आखिर उसके पास रसद और ज़रूरियात का कुछ ना कुछ सामान होगा। देखो, झूठ मत बोलना, अगर बोलोगे तो इसकी कड़ी सज़ा पाओगे। ये भी बताओ कि क्या इस संसार सिंह ने लश्कर के किसी मखसूस हिस्से के साथ शिकस्त की सूरत में भागने का पहले मंसूबा बना रखा था? आदिल खान के इस इस्तफसार पर गिरफ्तार होने वालों में से एक जो नज़दीक ही खड़ा था उसे मुखातिब करके कहने लगा, हकीकत यह है कि इस बार खुद संसार सिंह को खदशा था कि जंग के दौरान उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने जंग से पहले ही लश्कर का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया था। इस हिस्से को उसने जंग के दौरान इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि शहर के नवा में एक महफूज जगह घात में रख दिया था, और उसका मंसूबा यही था कि अगर शिकस्त हुई तो वो शहर में दाखिल होगा और जौहर की रस्म अदा करने के बाद अपने कुछ चीदा चीदा साथियों के साथ उस लश्कर में जा शामिल होगा जो उसने शहर से बाहर महफूज जगह घात में बिठाया था। जौहर की रस्म दरअसल ज़माना कदीम से राजपूतों में जारी थी, जिसे वो जौहर करना कहते थे। जौहर करना हिंदी के दो लफ्ज़ों का बिगाड़ है। असल में ये लफ्ज़ ज्यो हरना था। चूँकि ज्यो हरना बमानी जान लेवा के इस्तेमाल होते हैं, इस बिना पर यही ज्यो हरना बिगड़ते बिगड़ते जौहर करना के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये राजपूतों की कदीम रस्म थी। जब वो देखते थे कि कोई ज़बरदस्त गनीम उन पर चढ़ाया है तो वो अपने बाल बच्चों को खुद कत्ल करके या आग में जला के बिल्कुल क़ता ताल्लुक़ करने के बाद जान तोड़कर लड़ने जाते और वहीं जाकर मर जाते या फतह पाकर वापस आते थे। जो आदमी आदिल खान से मुखातिब हुआ था वो काफ़ी देर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, जिस वक्त आप लोगों के हाथों रानी को शिकस्त हुई और 2 तीर लगने के बाद रानी ने खुदकुशी कर ली, तब संसार सिंह ने उसी वक्त भांप लिया था कि शिकस्त उनका मुकद्दर है, लिहाजा वो भागकर शहर में दाखिल हुआ था। पहले उसने जौहर करना की रस्म अदा की, उसके बाद अपने चीदा चीदा साथियों को लेकर उस लश्कर की तरफ चला गया जो पहले से उसने शहर के नवा में महफूज जगह बिठा रखा था। इस लश्कर के पास खाने पीने और ज़रूरियात का सामान वाफिर मिक़दार में था। दरअसल संसार सिंह के इरादे कुछ और थे। उसने ये तो जान लिया था कि रानी का खात्मा हो गया है, लिहाजा जो लश्कर उसने घात में बिठाया था उसका इरादा था कि जब आप लोगों का लश्कर यहाँ से निकलकर शिमाल का रुख करेगा तो वो अचानक हमलावर होकर इसे नीस्तो नाबूद कर देगा, और अगर मुसलमानों ने कोई लश्कर रियासत गोंडवाना के मरकजी शहर चूड़गढ़ में छोड़ा तो उस पर भी हमलावर होकर उसका किस्सा पाक कर देगा और फिर खुद रियासत गोंडवाना का हुक्मरान बन बैठेगा। लेकिन संसार सिंह की बदकिस्मती के वो इनफरादी मुकाबले में आपके हाथों मारा गया, और जिस ख्वाहिश की वो तकमील चाहता था वो अधूरी रह गई। जहाँ तक उसके सामान का ताल्लुक है जो संसार सिंह ने अपने लश्कर के लिए शहर से बाहर निकाला था, तो वो सामान यहाँ से चंद फरलांग आगे बाएं जानिब दरख्तों के एक घने झुंड के अंदर रखा हुआ है। इसमें खुराक के वज़ीर ज़खायर के अलावा खैमे और दूसरा बहुत सा सामान है। उस कैदी का ये जवाब सुनकर आदिल खान मुतमईन और खुश हो गया था। फिर उसने अपने लश्कर का एक हिस्सा मुख्तस किया, चंद कैदियों को लश्कर के उस हिस्से के साथ रवाना किया और हुक्म दिया कि संसार सिंह के लश्कर का जिस कदर सामान वहाँ मौजूद है उसे उठाकर उस जगह लाया जाए जहाँ जंग हुई थी। आन की आन में लश्करियों ने मरने वालों के घोड़ों को इस्तेमाल किया और चंद फरलांग आगे जाकर बाएं जानिब जिस कदर सामान संसार सिंह का था वो घोड़ों पर लाद कर मैदान जंग में वापस आ गए। आदिल खान ने पहले सारे सामान का जायजा लिया। इस मौके पर कमला देवी, रतन कुमारी, सामल दास और चंद्रसेन भी उसके साथ थे। जिस वक्त वो सामान का जायजा ले रहा था, रतन कुमार बिल्कुल उसके पहलू में आ रुकी। फिर धीमे से लहजे में आदिल खान को मुखातिब करके कहने लगी, जिस कदर सामान आपको मिला है इसका क्या करेंगे? रतन कुमारी के इस सवाल पर उसकी तरफ मुड़ते हुए आदिल खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, रतन कुमारी, इस सामान पर मेरा कोई हक नहीं, ना ही मैं इसका मालिक हूँ। जिस कदर ये सामान मिला है मैं इसका जायजा इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने कुछ आदमियों के जिम्मे ये काम लगा दिया है कि सारे काम की फहरिस्त तैयार करें, इसलिए कि ये सामान एक तरह से मुझे माले गनीमत से हासिल हुआ है और ये सारा मैं जाके शहनशाह अकबर के सामने पेश करूंगा। इस बार मिठास भरे अंदाज में कमला देवी ने उसे मुखातिब किया, और इसमें अपने लिए क्या रखेंगे? आदिल खान ने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, मैं बेजरूरत सा इंसान हूँ, मैंने अपने लिए क्या रखना है? पहले ये सारा सामान शहनशाह के सामने पेश किया जाएगा, इसके बाद जिस तरह वो इस सामान की तकसीम करेंगे वो मेरे लिए काबिल कबूल होगा। मैं जानता हूँ इस सामान से वो लश्करियों के अलावा मुझे भी नवाजेंगे, लेकिन ये सारा सामान उनके सामने जरूर पेश होगा। आदिल खान जब खामोश हुआ तब कमला देवी ने फिर उसे मुखातिब किया, चूड़गढ़ से जो सामान आसिफ भाई को मिला था उसका जो हिस्सा आपके हवाले कर रहे थे वो आपको ले लेना चाहिए था और बादशाह के हवाले कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल में इस तरह आसिफ और वजीर दोनों भाइयों की भी बचत हो जाती।
इस मौके पर आदिल खान ने घूरने के अंदाज में कमला देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कमला देवी, मैं तुम्हारे इन अल्फाज से इत्तेफाक नहीं करता। वजीर खान के मिजाज से मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए कि वो हम दोनों भाइयों से दूर परवरिश पाता रहा है। जहाँ तक बड़े भाई आसिफ खान का ताल्लुक है तो उसके मिजाज, उसकी तबीयत से मैं आगाह हूँ। पहले वो ऐसा नहीं था, हर बात में दयानतदारी और अमानतदारी को मुकद्दम रखने वाला था। लेकिन जब से उसने शादी की है और फखरुन्निसा उसकी बीवी बनी है, तब से उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा हो गई हैं और वो एक तरह से लोभ और लालच में मुब्तला होकर रह गया है। मैं उससे माले गनीमत का वो सामान कैसे कबूल कर लेता जो वो मुझे दे रहा था। उसे सोने चांदी के बुतों के अलावा सोने चांदी और जवाहरात के ढेर मिले थे, जिनमें से सिर्फ चंद सोने और चांदी के टुकड़े वो आगरा भेजना चाहता था, और फिर 1000 हाथी उसके हाथ लगे थे और उनमें से सिर्फ 200 आगरा रवाना करना चाहता था। बाकी 800 हाथी वो क्यों अपने पास रखना चाहता था? कमला देवी और रतन कुमारी, तुम दोनों एक बात अपने दिल पर लिख रखना कि जिस रास्ते पर ये आसिफ खान और वजीर खान चल पड़े हैं, एक रोज़ शहनशाह के हाथों नुकसान उठाएंगे। जिस कदर मालो दौलत वो रख रहे हैं और 800 हाथियों पर कब्जा करके 200 शहनशाह की तरफ भिजवा रहे हैं, तो इससे शहनशाह के दिल में ये शुबा बैठ सकता है कि अगर किसी इलाके का हाकिम इस कदर जंगी हाथी अपने पास रखना चाहता है और इस कदर मालो दौलत पर कब्जा करके उसे अपने पास महफूज रखना चाहता है, तो इसका मतलब है कि आने वाले दौर में वो शहनशाह के खिलाफ सरकशी या बगावत करने का इरादा रखता है। यही हालत इस वक्त आसिफ खान और वजीर खान की भी है। वो लाख छुपाएं, लेकिन शहनशाह को पता चल जाएगा कि चूड़गढ़ से किस कदर माले गनीमत हासिल हुआ, और उसकी गलत तकसीम की वजह से आसिफ खान और वजीर खान दोनों शहनशाह के इताब का भी शिकार हो सकते हैं। कमला और रतन शहनशाह का एक सालार है, उसका नाम अब्दुल्ला खान उज़्बेक है और आसिफ उसके मुकाबले में कुछ नहीं। जिस वक्त हम चूड़गढ़ से भागकर अकबर के लश्कर की तरफ गए थे, उसी ने हमें पनाह दी थी और उसी ने लश्कर में हमें अपनी जगह बनाने का मौका फराहम किया था। वो इस वक्त कालपी और उसके आसपास के इलाकों का हाकिम है। माले गनीमत ही के सिलसिले में शहनशाह उसकी तरफ से शक और शुबे में मुब्तला है, और अगर शहनशाह का शक और शुबा यकीन में बदल गया तो फिर शहनशाह अब्दुल्ला खान उज़्बेक के खिलाफ हरकत में आएगा। हालांकि अब्दुल्ला खान शहनशाह के नामवर सालारों में से एक है। उसने शहनशाह के लश्कर में मुग़ल सल्तनत के लिए बेहतरीन और कामयाब खिदमात भी अंजाम दी हैं। इसके बावजूद मेरा अंदाज़ा है कि अनकरीब शहनशाह अब्दुल्ला खान उज़्बेक के खिलाफ हरकत में आएगा, इसलिए कि मैं अब अकबर के मिजाज को समझ चुका हूँ। शहनशाह सोचता है कि जो भी सूबे का वाली या हाकिम शहनशाह की मुकर्रर की हुई हुदूद से ज़्यादा अपनी अस्करी ताकत में इजाफा करता है, वो बगावत और सरकशी के इरादे से ऐसा करता है। मैंने आसिफ खान और वजीर खान दोनों को माले गनीमत के सिलसिले में बड़ा समझाया, लेकिन वो नहीं माने। देख लेना, आने वाले किसी भी दौर में उन्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे, वो पछताएंगे और उस वक्त उनका पछतावा भी उनके काम न आएगा। आदिल खान की इस गुफ्तगू से कमला और रतन बेचारी दोनों फिक्रमंद सी हो गई थीं। इतनी देर तक आदिल खान के लश्करियों ने सारे सामान की फहरिस्त तैयार कर ली। सारा सामान बार बरदारी के जानवरों पर लादा गया था। इसके बाद आदिल खान ने अपने लश्कर के साथ आगरा की तरफ कूच किया। जिस वक्त आदिल खान अपने लश्कर के साथ आगरा शहर में दाखिल हुआ, अकबर की तरफ से सल्तनत के खाने खाना मुनिम खान ने बेहतरीन अंदाज में अपने कुछ अमायदीन के साथ उनका इस्तकबाल किया। आदिल खान को जिस कदर सामान संसार सिंह से हासिल हुआ था, वो एक खुले मैदान में सजा दिया गया था, और आदिल खान ने इस सारे सामान की फहरिस्त मुनिम खान को मुहैया कर दी थी। अभी मुनिम खान सारे सामान का जायजा ले ही रहा था कि अकबर की सवारी की इत्तला दी गई। थोड़ी देर बाद अकबर उस मैदान में दाखिल हुआ। उसके साथ दूसरे अमायदीन सल्तनत भी थे। मुनिम खान और आदिल खान दोनों ने आगे बढ़कर शहनशाह को ताज़ीम दी। अकबर अपनी सवारी से उतरा, आदिल खान को गले लगाकर रियासत गोंडवाना की कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दी। फिर वो उस सामान का जायजा लेने लगा था। इस मौके पर मुनिम खान ने सामान की फहरिस्तें भी अकबर को दिखा दी थी। सामान का जायजा लेने के बाद अकबर ने आदिल खान की तरफ देखा और पूछा, क्या ये रियासत गोंडवाना की तरफ से आने वाला सारा माले गनीमत है? जवाब में आदिल खान ने बड़ी आजजी और इनकसारी में कहना शुरू किया, शहनशाह मौज़म, ये माले गनीमत रियासत गोंडवाना का नहीं है। वहाँ से जो माले गनीमत हासिल हुआ है वो मेरे भाइयों आसिफ खान और वजीर खान के पास है, और मेरे ख्याल में चंद दिन तक वो भी माले गनीमत आपकी तरफ भिजवा देंगे। मैं जिस वक्त रियासत गोंडवाना से निकलकर आगरा की तरफ आया था तो जंग के दौरान रियासत का सेनापति संसार सिंह एक लश्कर के साथ भाग गया। उस लश्कर को उसने जंग से पहले ही बाहर बिठा दिया था। चुनाचे वो चूड़गढ़ से चंद कोस दूर मेरी राह रोक कर खड़ा रहा। मेरा और उसका टकराव हुआ। पहले उसने मेरे साथ इनफरादी मुकाबला किया। मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके लश्कर को शिकस्त दी।
उसके लश्कर को शिकस्त देने के नतीजे में जो सामान मेरे हाथ आया है वो सारा आपके सामने है। इसकी फहरिस्त भी मैंने मोहतरम मुनीम खान के हवाले कर दी है। आदिल खान के इन अल्फाज पर अकबर खुश हो गया था। एक बार फिर उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, इसमें से तुम जो कुछ मर्जी अपनी मंशा से लेना चाहते हो ले लो, इसके बाद बाकी सारा सामान लश्करियों में तकसीम कर दो। अकबर के इन अल्फाज में आदिल खान खुश हो गया। कहने लगा, शहनशाह मुअज़्ज़म, मुझे आपकी तरफ से माकूल रोजीना मिल जाता है, इससे मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है, बल्कि इसमें से कुछ पसे अंदाज भी कर लेता हूँ, लिहाजा इस माले गनीमत से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदिल खान के इस जवाब से अकबर बड़ा मुतासिर हुआ। कुछ देर बड़ी अकीदत से उसकी तरफ देखता रहा। फिर कुछ छोटे सालारों को उसने बुलाया और आदिल खान की निगरानी में वो सारा सामान लश्करियों में तकसीम कर दिया गया और लश्करियों को मुस्तकर में जाकर आराम करने का हुक्म दे दिया गया। जब लश्करी वो सारा सामान समेट कर चले गए तब अकबर ने आदिल खान को कुछ कहना चाहा तो आदिल खान ने पहले कमला देवी और रतन कुमारी का तारुफ कराया। उन्हें देखकर अकबर खुश हुआ। कहने लगा, इन दोनों को अपने मामू के यहाँ रहने दो, और हाँ आदिल खान, मैं तुम्हारे जिम्मे ये काम लगाता हूँ। ये दोनों चूंकि शहर में अजनबी हैं, लिहाजा गाहे गाहे तुम इन दोनों की तरफ चक्कर लगाते रहोगे और इनकी खैर वाफियत के साथ इनकी अहवाल पुरसी भी करते रहोगे। इसके साथ ही अकबर मुड़ा, अपनी सवारी पर बैठा और वहां से चला गया। अकबर के जाने के थोड़ी देर बाद बेपना खुशी का इजहार करते हुए कमला देवी और रतन कुमारी दोनों आदिल खान के पास आईं। फिर कमला देवी कहने लगी, आपने शहनशाह के अल्फाज सुने? उन्होंने कहा था कि आप अक्सर व बेशतर हमसे मिलते रहेंगे, हमारी अहवाल पुरसी भी करते रहेंगे और हमारी ज़रूरियात का ख्याल भी रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रतन का तो मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो शहनशाह से आपकी शिकायत करूंगी। कमला देवी के इन अल्फाज पर आदिल खान कुछ कहना ही चाहता था कि कमला देवी फिर बोल उठी, आप बुरा ना मानिएगा, ये तो मैं यूं ही मजाक कर रही थी। दरअसल मैं और रतन कुमारी रास्ते ही में आपसे एक मौजू पर बात करना चाहती थी, पर कोई खास मौका नहीं मिला था। जौहर की रस्म अदा किए जाने से पहले जिस वक्त हम महल से भागी थीं, तो हम अपने साथ नकदी जवाहरात, सोने की एक खासी मिकदार और दूसरी कीमती अशिया लेकर भागी थीं, जिनमें जेवरात भी थे। वो मेरे और रतन के घोड़े के साथ जो खिरजीनें बंधी हैं उनमें महफूज हैं। अब मैं और रतन चाहती हैं कि इस सारे सामान की हिफाजत का एहतमाम किया जाना चाहिए। मैंने रास्ते में रतन से मशवरा किया था। रतन का कहना था कि ये सारी चीज़ें हमें अपने मामू के यहाँ नहीं रखनी चाहिए, कुछ सामान आपके पास और कुछ मामू के यहाँ होना चाहिए, इसलिए कि कमला देवी अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, इसलिए कि आदिल खान फिर बोल पड़ा, कमला देवी, मैं तुम्हारी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करता। देखो, शहर में चहार बाग के सामने मेरा एक मकान है जिसमें मेरी रिहाइश है। मेरी रिहाइश के साथ ही दरबार की 2 मुगन्नियाँ अपने अहल खाना के साथ रहती हैं। उनका मकान भी मेरे मकान जितना ही है। दोनों मकान अपनी तामीर, शक्ल व शबाहत में एक जैसे ही हैं। कमला, मैं अक्सर व बेशतर लश्कर के साथ बाहर रहता हूँ। मैं चूंकि उस मकान में अकेला रहता हूँ, लिहाजा इस मकान में तुम्हारी इस कदर कीमती अशिया कैसे रखी जा सकती हैं? वो तो वहाँ बिल्कुल गैर महफूज होंगी। आदिल के इन अल्फाज के जवाब में इस बार रतन कुमारी बोल पड़ी, ठीक है, आप जिस मकान में रहते हैं अगर वो उस सामान के लिए गैर महफूज है तो फिलहाल वो सारा सामान मामू के यहाँ लिए जाते हैं, लेकिन पहले आप हमें अपना मकान दिखाएं कि वो कहाँ और किस जगह है, ताकि कम से कम आप हमारी तरफ चक्कर लगाएं तो हम दोनों बहनें आपके पास आकर आपसे मिल सकें। जवाब में आदिल खान मुस्कुराया और कहने लगा, फिलहाल तुम दोनों अपने मामू और मामूजात के साथ जाओ, जाकर आराम करो। मैं तुम लोगों की तरफ आऊँगा और तुमसे वादा करता हूँ तुम दोनों को अपनी रिहाइशगाह भी दिखाऊंगा। आदिल खान के इन अल्फाज पर कमला देवी और रतन कुमारी खुश हो गई थीं। फिर वो अपने मामू सामल दास और मामूजाद चंद्रसेन के साथ चली गई थीं, जबकि आदिल खान अपने घोड़े पर बैठा और अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था। कमला देवी और रतन कुमारी दोनों का ख्याल था कि 2-4 रोज तक आदिल खान उनसे मिलने के लिए सामल दास के यहाँ जरूर आएगा, लेकिन जब 2-4 दिन की बजाय 2 हफ्ते गुजर गए तब एक रोज दोपहर के वक्त कमला देवी और रतन कुमारी दोनों उस जगह आईं जहां सामल दास, चंद्रसेन, सामल दास की बीवी पूरन देवी और सामल दास की बेटी जगत कुमारी बैठे हुए थे। दोनों जब उनके करीब गईं तब जगत कुमारी अपनी जगह पर उठी। बड़ी चाहत का इजहार करते हुए आगे बढ़कर उसने कमला देवी और रतन कुमारी दोनों के हाथ पकड़ लिए और अपने करीब ही बिठा लिया। फिर गुफ्तगू का आगाज रतन कुमारी ने किया और अपने मामू सामल दास की तरफ देखते हुए कहने लगी, मामू, आपने आदिल खान की रिहाइश और उसका मकान तो देख रखा है। सामल दास मुस्कुराया, असबात में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मैंने उसका मकान देख रखा है बेटी, क्या जरूरी काम है? इस मौके पर रतन कुमारी ने एक बार भरपूर निगाह अपने पहलू में बैठी कमला देवी पर डाली
اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے ماموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ماموں، میرا اور کملا دیوی کا خیال تھا کہ چند روز تک عادل خان ہمارے ہاں آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ آپ نے پہلے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کا مکان دیکھ رکھا ہے۔